a child. Now, you see the involvement of the teachers. You should make them own rather. Then you get late. Then take the photo, start starting to take the video. Then the issue is the answer. So the first thing is that you should make the classes and the school very attractive. Inno ಆಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ಹಣ ಅಲ್ಲ. That's the involvement. That's the most important. Yeah, commitment. That's the issue. The commitment, involvement, and in the education commitment. This is the more important one criteria in any education institution. Second one. Number two is the physical infrastructure and also the parents. That is all the issue. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರುವಂತ ಟೀಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. That is basically government schools only the most actively involved. For your information, sir, for your information, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ತ ಇಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ತ ಇದೆ. That is the way in which the government schools are getting expanded, private schools are getting grown in Kerala. So the issue is the parents have realized the teachers in the government schools are all experienced, regularly getting reviewed, regularly getting the input training, and they have been well paid. In a private school, they will be just graduate. They have been working for 1 or 2 months or 3 months or 6 months after they go there. Then they will not have any commitment and they accept for the monetary gains. Very few schools are there with the real long-term educational schemes. That is one. So we must get it if it is possible in our neighboring district of Malappuram, which has been 71% of minorities, which has a much lower education qualification than the Mysore. See, Mysore, you are in a city, you block in the Kerala, yes. You have to block in the lake. If you are there 7th or 8th or 9th out of the 9 blocks, it should have been first or second or third in an ideal situation. Compared with the HD Kote or Piyapatna, if you are lower than Mysore city is lower than Tuma Rajke. Shameful that we have been lower than the HD Kote, which is a very hilly unforested locality. So you must make ourselves self-pride that you must achieve in top 3. That should be our objective. So the issue is Kerala, they have given Jilla Panchayat involved. Second is, this is much easier to achieve the success. Now city ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿ ಒಂದು 2-3 hours ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. All the schools can be either BO or OLS can be covered in 2-3 hours. If it is in a HD Kote, it will require at least 1 week to cover all schools. So it is much easier to succeed in a city NR constituency to properly review and monitor, to reach out and to see that the students are even if they might have a teacher once ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So they can be brought back to the school. There should be a zero dropout. अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकाम है अपना घर मैसूर शहर के तालीमी एतबार से एक फिक्र के साथ
सेंटर फॉर गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन इंडिया, ये केरला का एक तंजीम जिसके जरिए निगरानी केरला के मलप्पुरम से इन्होंने काम शुरू किया और वहां से लेकर इनका सफर पूरे मुल्क भर में आज अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जनाब अडूर इब्राहिम के जरिए से ये आज मैसूर आना हुआ। दूसरा 15 दिन से इस चीज को लेकर, इस फिक्र को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे प्रोफेसर नबी जान इदरीस साहब और शहर में जो मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें खासतौर से हमारे खुदा के जिम्मेदार इब्राहिम सेठ हैं, मैजेस्टिक के जनाब आरिफ मेकरी हैं, इन तमाम को लेकर मेस्को इंस्टीट्यूशंस के हमारे शबीर मुस्तफा साहब आज सवेरे से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिक्र के साथ बहुत सारे पहलुओं के ऊपर तालीमी एतबार से दाखिला लेने वाले बच्चों को स्कूल में 10वीं या 12वीं जमात तक किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है और साथ ही साथ 100% हमारा रिजल्ट किस तरीके से हम ला सकते हैं, स्कूल के निजाम में किस तरीके से बेहतर माहौल बनाया जा सकता है, इन तमाम चीजों के ऊपर लेकर बहस भी हुई। काफी सारे मशवरे भी हमारे सामने आए और आखिर में हमने शहर मैसूर में गवर्नमेंट स्कूल, ग्रेजुएट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इन तमाम से 21 लोगों की एक कमेटी हम बनाएंगे और शहर में तालीमी एतबार से खासतौर से मिली इदारों को ताकतवर बनाने के लिए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अखिल साहब हैं, प्रोफेसर शकीबुर रहमान साहब हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जाकिर हुसैन साहब हैं जो पी शेख अली साहब के फजल हैं, और इसी तरीके से प्रोफेसर नबी जान है, प्रोफेसर हमारे नसीमुद्दीन है, प्रोफेसर इलियास साहब है, प्रोफेसर शबीर मुस्तफा साहब है, अडूर इब्राहिम साहब है, इन तमाम को लेकर शहर के सतह पर हम एक कमेटी बनाएंगे और बाकायदा नौजवानों को भी इसमें हिस्सा लेने की हम मदद कर उनसे भी जरूर जिस तरीके से काम लेना है वो लेंगे। आज ये तय पाया है कि तालीम की अहमियत और तालीम के विशिष्ट को आगे बढ़ाने के लिए माशरे को साथ लेना और माशरे के साथ साथ निजी इदारों में, चाहे वो उर्दू स्कूल हो या फिर मोहल्ले में जो स्कूल है, उसकी जिम्मेदारी एक मस्जिद या मस्जिद की कमेटी किस तरीके से इसका साथ दे सकती है और साथ ही साथ अगर स्कूल को सही मायने में स्कूल के तरीके से चलाना है तो आज जिस तरीके से फीस बढ़ती नजर आ रही है तो वालिदैन को अपने बच्चों के तालीमी ख्वाब को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी सेक्शन शुरू करने की के निजाम को लेकर प्री प्राइमरी जो LKG UKG शुरू करने से लेकर माशरे में चाहे वो मस्जिद हो या दानिश्वर लोग जो हो, उनके जो दिए हुए चंदा हो या फिर है ना मिली फिक्र के साथ जो काम करने के लिए आए गए होंगे, उनको लेकर हम एक तालीमी इदारे को और बेहतर जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फिक्र के साथ आज हम बात किए हैं। तो पहली निशिस्त में हम शहर के या बल्कि मेरे हल्के के 10 स्कूलों में इस चीज को शुरू करने का हमने है ना इनसे
हमने वायदा किया है कि एक बार हम उठाएंगे और शुरू करने के बाद 3 माह के बाद फिर एक बार बैठेंगे, जब हमारे सामने किस तरीके की रुकावटें आ रही है या किस तरीके से हमें है ना आगे बढ़ने में, वो माशरे में हमारा साथ किस कदर मिल रहा है, इन तमाम चीजों को है ना देखकर इसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने जो सेंटर ऑफ गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन इंडिया जो बनाया है, मलप्पुरम में सिर्फ 33% का पास परसेंटेज था, और जहां उस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 71% मुस्लिम आबादी होने की जगह होने की वजह से एक फिक्र के साथ इन लोगों ने काम किया। आज लगभग 60% पास परसेंटेज आ रहा है। तो इसको देखते हुए इसके मद्देनजर कौम में तालीमी हरारत को और आम करने के लिए और साथ ही साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम के निष्ठ को किस तरीके से जोड़ कर ले जा सकते हैं, या दीनी तालीम चलने वाले इदारे जहां मदरसे हैं वहां पे ना दुनियावी तालीम किस तरीके से ला सकते हैं, या बेहतर माहौल में बच्चों को आज के हालात का सामना करने की सलाहियत और ताकत किस तरीके से दे सकते हैं, ये फिक्र के साथ आज का निष्ठ हमने बुलाया था, जिसमें हमारे बीओ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर पहलू पर हर पुर्जू को खोलकर हमारे सामने है ना डिटेल्स हमारे सामने रखे। कितने स्कूल से, हर स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने असाइजा हैं, उनके सामने क्या तकलीफ सामने आ रही है, उसे हल करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, इन तमाम चीजों का ना मुआयना हमने सुबह से किया है। और असाइजा उनके सामने क्या परेशानियां हैं, या बच्चों की निगरानी करने के तालीमी इदारे, उन बच्चों के वालिदैन के साथ मिलने में क्या दिक्कत हो रही है, वालिदैन अपने बच्चों के हालचाल को लेकर कितने बार स्कूल तक आ रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर हमने फिक्र की है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे इसे बेहतर तरीके से हर स्कूल में, स्कूल चाहे वो हुकूमत की स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इसे इसके निजाम में और सुधार लाने के साथ साथ बच्चों को इस माशरे में एक सही तरीके से एक नायाब जेवर बनाकर बाहर लाने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी फिक्र लेकर हम काम शुरू किए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ दो है कि हमारे इस काम करने को कबूल करें और मिल्लत का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो और एक बेहतर से बेहतर इस मुल्क का बाशिंदा बने, ये हमारी दुआ है। सर, अब वजीर तालीम रह चुके हैं, इसमें ही तो किस तरह से आगे चलकर ये कहां तक जाएंगे? इस रियासत में वजीर तालीम के हैसियत से अल्लाह ने मुझे जो मौका दिया, इसमें बहुत सारी चीजों में मैंने तब्दीली लाई थी, वो अपनी जगह चल रहा है। जैसे मौलाना आजाद स्कूल हमने शुरू किया, कर्नाटक पब्लिक स्कूल हमने शुरू किया, आदर्श विद्यालय में अंग्रेजी मॉड्यूल हमने शुरू किया, या हमारे मौजूदा स्कूलों में उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी, कन्नड़ा के साथ साथ अंग्रेजी, इन तमाम चीजों को लाने के बावजूद हमारे बच्चों में तालीमी बेदारगी और बच्चों में जो फिक्र होनी चाहिए, इसमें ना बिल्कुल जिस कदर हम सोचे हैं उस तरीके से अभी हमारे सामने नतीजा नहीं आया है। लगभग अभी गुज़िश्ता माह में एसएलसी के एग्जाम्स चले हैं, लगभग 1,500 बच्चे एसएलसी के तालिबा होकर स्कूल में दाखिला लिए हैं। अटेंडेंस कम होने की वजह से वो एग्जाम में हिस्सा नहीं ले सके। तो 1,500 बच्चे कल इस माशरे को क्या इनकी ताकत हमें मिलेगी या इनको झेलना हमें पड़ेगा, ये है ना सोचने की बात है। तो इस फिक्र को लेकर ये तहरीक हमने शुरू किया है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू जबान हो, मैथ्स हो, साइंस हो, उसे किस तरीके से सिखाना है और उनको सीखने का मौका देना है। असाइजा के साथ साथ हमारी टीम भी है ना हर स्कूल में है ना जाएगी और उनको है ना बात करेगी, और साथ ही साथ अगर मौका पड़े तो है ना वालिदैन को बुलाकर उनसे राबिता कर बात करने की भी कोशिश करेंगे। और हमारी एक टीम
जिसमें अब हमारे सामने यूनिक यूथ फाउंडेशन आया है, उनको भी ये जिम्मेदारी दी है कि जो बच्चे 1,500 बच्चे एग्जामिनेशन लेने से रहे, उनके घरों तक जाकर उन बच्चों के वालिदैन से मिलने का एक बेड़ा उठाकर हम काम शुरू किए हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जो भी है ये अल्लाह की रजामंदी के लिए है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि जो भी नतीजा होगा ये उसके फजल करम से हमारे सामने आएगा।